Should wait for another minute or two. Yeah, we'll wait like for 3 to 4 more minutes and then we'll start, है ना सुगंधा जी? Okay. Okay, Pooja ji. Good evening, Renu ji. Hello. Hello जी, good evening. Good evening, Priyananda ji. Good afternoon. Okay, shall we wait for another minute or can we start, Pooja ji? Is it okay? Yes, we can start Sugandhi ji. Or else we can start like we will wait for 2 minutes. Like we'll start by 12:35. Sorry, 4:05. 5 minutes. Okay. Good evening, ma'am. Good evening, sir. We just give a 2 minutes to start. Good evening, Saili ji. All right, just give us 2 moments. Right. Good evening, everyone. I think Priyanand ji, can you mute? I think there's some noise. Okay, thank you. So we're going to start today's session. Good evening, everyone.
and this is from Aram. I'm Sugandhi, and welcome to the 5-day session from today. And let's start with a small prayer. All right. So please sit comfortably. Hands in Jnana Mudra on your thighs. Close your eyes. Keep your back straight. Relax your shoulders. Take a deep breath in and out. Normal breathing in, breathing out. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopakarutram pravaram munina patanjali tanjali ranatoshmi. I salute Patanjali, the highest among the Munis, who with his work has given the remedies of the body through his work on Ayurveda, and that of the literature he's given grammar, and that of our chitta or the mind he's given us yoga. Om Shanti Shanti Shanti. Now rub your palms, the eyes, remove your hands, and gently open your eyes. Good evening, everyone. So today we are in the 5-day program, and before that, I'll give you a small introduction about Arambha Yoga. So give me a minute. So Arambha Yoga Institute is accredited by Yoga Certification Board, YCB, Ministry of Ayush, Government of India. It is an ISO certified institute for international standard that specifies requirements for a quality management system, QMS, and it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work for to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training and guidance in yoga teaching profession, and introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting in improving life balance of an individual, hence turning up a better society. Now, for the next 5 days, I have Pooja Maurya who will take over from now on. So Pooja Maurya is right now located in Munich, Germany. By profession, she's a plastic engineer, and her yoga qualification is she's certified by, she's completed the first and the second level by YCB from Arambha Yoga right now, and she's also completed her Ayush certification for the same. Right now, she's pursuing level 3 and 4, and she will take over right now. Pooja, you can go ahead. Let me change you to the host.
Yes, Pooja, you're the host now. तो नमस्ते एवरीवन, आई एम पूजा। ओके, और हम नेक्स्ट 5 दिनों के लिए एक साथ में बैक पेन के लिए हम एक कैंप ले रहे हैं जिसमें हम सभी साथ होंगे 5 दिनों के लिए। ओके, मैं शुरू करती हूँ अपना पीपीटी। आज हम थोड़ा थ्योरी सीखेंगे बैक पेन के बारे में, हमारा बैक पेन लाइक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद हम कल से प्रैक्टिकल का शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली हम कैसे उसको सही कर सकते हैं। ओके, सभी को मेरी पीपीटी विजिबल है? क्या आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं? जस्ट गिव मी थम्स अप इफ इट इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो बैक पेन के ऊपर है, और हम ये अंडर गाइडेंस ऑफ आरंभ योगा इंस्टीट्यूट के अंडर हम गाइडेंस में हम ये 5 दिनों का कैंप कर रहे हैं बैक पेन के ऊपर। ओके, और ये थोड़ा लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सबसे पहले हम कोई भी सेशन करते हैं, कोई भी हम आसना शुरू करने से पहले हम हमेशा प्रेयर से शुरू करते हैं। अभी हम प्रेयर के बेनिफिट्स पे देखेंगे कि हमें प्रेयर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, हमारे जो सोल होता है उसको रिस्टोर करके रखता है, और हमें हमारे अंदर जो ग्रेटिट्यूड की भावना है उसको इंक्रीज करता है। और जो Excuse प्रेयर me, करने पूजा से जी। Sorry, your यस, पूजा जी, PPT is not visible. Actually, वो Yes. Explorer दिख रहा है. आपका स्क्रीन ही दिख Okay. रहा है पूजा जी, स्लाइड नहीं आ रहा है। Just स्क्रीन इज नॉट विजिबल। 1 second. Yeah, your this Explorer was visible. आपका PPT नहीं दिख रहा था. खाली वो It is computer visible now? No, not yet. No, no, no. Not yet. Okay, give me a moment. You have to नहीं, click. आपका माय कंप्यूटर ही दिख रहा है. वो ये नहीं दिख रहा है. Still? हाँ, ओपन हो रहा है. PPT अभी नहीं दिख open रहा? हो. नहीं, अभी Which पीपीटी open ओपन हो नहीं रहा हुआ है। Okay, okay, wait. Let me try it again. अभी दिख रहा है? No. No. Pooja ji, not yet. Okay, wait. आप शायद uh, ओपन करके शेयर कीजिए. अभी हो रहा है? अभी विजिबल है? No, No, no. no, 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 no. No. Okay. Let me try again. Okay. Oh, okay. So sorry. Let me try it again. I don't know. Just try from Arambh Yoga itself, if you're able to share. Wait. Yeah, there. No, actually, I'm doing with this only. Wait. So sorry. I don't know what it is. Give me a moment, guys. So sorry for this inconvenience. Wait. Mm, can you see it now? Yes. Okay. Yes. Okay, so
we are we were discussing about the benefits of the prayer. So I'll start with this only. So the importance of prayer is it makes your surroundings you will feel more positive from inside and out. It so enhance the positivity. आपकी जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, आप ग्रेटिट्यूड ज्यादा फील करते हो, आपका करना भाव जो होता है उसको इनहेंस करता है, और आपका जो एटीट्यूड है वो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाता है, उसको इनहेंस करता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी सेशन स्टार्ट करते हैं या फिर आसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। प्रियानंदा जी, कैन यू do not do this? No, thank you, it's okay, that's fine. Okay, so we'll start with the what is back pain. So exactly, if there is any problem with the spine, in your spine, which cause back pain, जिसकी वजह से ही हमें बैक पेन होता है। अभी हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है हमारे बैक पेन के। तो अभी जब भी हम बैठ रहे हैं, खड़े होते हैं, स्टैंडिंग रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें जो भी पेन होता है ना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। या फिर जब भी आप कोई भी हैवी थिंग है या फिर कुछ भी चीज आप लिफ्ट कर रहे हो, उस टाइम पे भी अगर पेन होता है, वो भी एक सिम्टम है। और जब भी आप सुबह उठते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका जो बैक होता है बहुत स्टिफ होता है, बट वो क्या धीरे धीरे जो आपका जैसे दिन हुआ आप थोड़ा काम करना शुरू किए, वो थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस होता है। वो भी हमारा बैक पेन का एक सिम्टम होता है कि हाँ, हम आपका बैक पेन हो रहा है। ठीक है, अभी हमको विजिट कब करना है डॉक्टर के पास, या फिर हमें डॉक्टर के पास कब जाना है? तो जब हमारा पेन, जैसे आपको आज से पेन शुरू हुआ और वो 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तब आपको डॉक्टर को एटर्नी हाउ दिखाना है। या फिर आपका जो आपके बैक में या फिर आपके किसी भी लोअर पार्ट में आपको नंबनेस आ रही है, ऐसे आपका सुन्न हो जाता है ना, बोलते हैं, वो हो रहा है, टिंगलिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। या फिर आप जैसे कभी गिरे, फॉर ऑल ऑफ सडन आप गिर गए और आपके बैक में पेन हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर को विजिट करना ही करना है। और आपको कई बार क्या होता है कि जब हम बैक पेन होता है हमारा, तो उसके साथ में ना हमें फीवर भी आता है। तो ये जब हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा वो जो सिम्टम होता है ना, वो फीवर के थ्रू आता है। तो अगर आपको फीवर हो रहा है बैक पेन के साथ में, तो डॉक्टर को मस्ट है दिखाना। और आपकी बॉडी में जो बैक पेन है, बैक से आपका रेडिएट हो रहा है, आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, आपके लेग में पेन हो रहा है बैक पेन के साथ में, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अभी हम थोड़ा एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेंगे स्पाइन के, बिकॉज हमने देखा अर्लियर इन डेफिनेशन या फिर बैक पेन क्या होता है कि अगर स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बैक पेन को कॉज देता है। तो अभी स्पाइन क्या होता है हमारा, एक स्पाइन जो होता है एक स्ट्रैक होता है बोन्स के, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स का ऐसे स्ट्रैक होता है इसमें, और डिस्क के थ्रू ये एक दूसरे से गैप में होता है या फिर एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्क। अभी जो हमारा सर्वाइकल या फिर जो स्पाइन है, इसमें ना ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, सबसे पहला जो आता है हमारा सर्वाइकल। तो हमारा जो स्पाइन होता है वो यहाँ से स्कल का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, जहाँ पे स्कल खत्म होता है, वहां से शुरू होते हुए आपका जो लोअर पोर्शन होता है, आपका जो एनस होता है ना, उसके पास तक ही आपका स्पाइन होता है। अभी इसमें 5 डिवाइडेड किया है। तो अभी जो आपके स्कल से लेकर के जो शोल्डर तक होता है, ये जो जहाँ पे बोन होता है, ये होता है आपका सर्वाइकल। अभी ये जो सर्वाइकल है, इसमें भी ये वर्टेब्रा होगा, ये जो बोन है यहाँ पे, तो इस तरीके से स्ट्रैक में ये बोन्स होते हैं। तो उसको ना वो 7 वर्टेब्रा 7 बोन्स तक है, C1 से लेकर के C7 तक ये डिवाइड किया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका थोरैसिक। थोरैसिक क्या होता है, आपका जो ये शोल्डर है, इसके नीचे से जो आपका जहाँ पे स्टमक है या फिर रिब के जहाँ पे खत्म होता है ना, यहाँ तक आपका ये थोरैसिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो कवर करता है ये पोर्शन, ये थोरैसिक ही कवर करता है। और इसमें ये डिवाइडेड है, इसमें T1 से लेकर T12 होता है, तो इसमें 12 वर्टेब्रा होते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद आपका लंबर रीजन आता है, जो सबसे ज्यादा आपको बैक पेन या फिर बोलते हैं ना, तो ये लंबर रीजन में ही आता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो कि आपका जो स्टमक है ना, इससे कनेक्टेड है। आपके इसके सीधे में आप जब पीछे देखेंगे तो ये स्पाइन के इस रीजन में ये लंबर होता है आपका। उसके बाद जो आपका हिप रीजन है, आपका स्पाइन गया नीचे तक में, अभी जहाँ पे आपका हिप है उस जगह पे आपका ये सैक्रल होगा, और ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, S1 से लेकर के S5 तक। अब जो कोकेक्स होता है, ये ना आपके हिप के थोड़ा सा नीचे बहुत छोटा पतला होता है, जिसमें कुछ भी डिवाइड नहीं होता है,
और आपका जो कोकेस है ना, इसको टेल बोन भी बोलते हैं। जो हम मोस्टली हमने सुना होगा ना कि जो हमको मतलब टेल बोन में पेन हो रहा है या फिर टेल बोन में है एकदम लास्ट, तो ये आपका कोकेक्स होता है। अभी जो आपका स्पाइन है, ये आपका वर्टेब्रा हो गया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टैक होते हैं, और आपके बीच में जो स्टैक है इसके बीच में ना ये डिस्क होता है। अब ये डिस्क क्या करता है, इसके बीच में ना एक बैरियर बनाता है ताकि आपका जो ये दोनों वर्टेब्रा है ना एक दूसरे के ऊपर घिसे नहीं। अब यहाँ पे आपका ना नर्व रूट भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आपके स्पाइन से निकलते ये जो कॉर्ड होता है, और जो कॉर्ड होता है ना ये हेल्प करता है आपके ब्रेन से जो भी मैसेजेस है आपके बाकी बॉडी में मैसेज पहुंचाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिस्क के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्क क्या होता है, एक ना फाइब्रस का एक ऐसे राउंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपके इस दोनों के बीच में है। ये आपका वर्टेब्रा हो गया, ये दो बोन्स है स्पाइन के, इसके बीच में डिस्क है। ये आपकी नॉर्मल डिस्क है, ये जो एकदम प्रॉपर हेल्दी डिस्क है। अब इसका क्या, ये बाहर जो है ना फाइबर जैसे थोड़ा सा हल्का सा रबरी टाइप में स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर अंदर ना जेल टाइप में एक फ्लूइड होता है जो कि इसके अंदर फिल्ड होता है, और वही जो फ्लूइड होता है वो ही आपके स्पाइन को ना मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग हर्निएटेड डिस्क। अभी हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है, ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये आपका सपोज ये डिस्क है, इसके यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जिस रीजन से भी कुछ हुआ या तब इंजरी हुई कुछ भी, तो इसमें जो ये लिक्विड है ना अंदर का, जो फ्लूइड है यहाँ पे जेल लाइक का, वो थोड़ा बाहर निकलने लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ये, है ना, तो इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। अब बल्जिंग डिस्क में क्या होता है, जो ये पूरा जेल है ना इसके अंदर, जो ये आपका डिस्क हो गया, ठीक है, प्रेशर पड़ा या फिर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो ये जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, पूरा ही बाहर आ गया। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो इसकी वजह से फिर आपको बैक पेन होगा, ये जो बल्जिंग डिस्क है। अब ये तो डिजेनरेटिव डिस्क। अभी जो डिस्क का काम क्या था, लाइक दोनों दो वर्टेब्रा इनके बीच में, और इन दोनों के फ्रिक्शन को, मतलब ताकि ये दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, एक दूसरे से घिसे ना। अभी डिस्क अंदर से खराब हो रहा है। अब उसका रीजन लाइक खराब होने की वजह से डिस्क क्या होगा कि वो उसके पतला थिन हो गया, या फिर वो उसके अंदर इतने अभी कैपेबिलिटी नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर खराब हो गया है, तो उससे क्या होगा, दोनों वर्टेब्रा फिर आपस में एक दूसरे को इस तरीके से घिस देंगे। तो जिस इसकी वजह से आपका जो ये डेनरेटिव डिस्क, डिजेनरेटिव डिस्क हुआ। अभी हम देखेंगे कि स्पाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट थ्री थिंग है, ये आपके बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो भी मेंटेन करता है, और आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और मूव करने के लिए बनाता है। ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो स्पाइन है इससे हर एक बॉडी पार्ट कनेक्ट, लाइक आपको जो भी ऑर्गन है आपके आई से लेकर के एनएस तक सब कनेक्टेड है। अभी हमने देखा आगे कि उसके अंदर जो अपना स्पाइन है, ठीक है, उसमें से नर्व निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी से नर्व होते हैं ना, तो जो नर्व होते हैं वो हर एक ये ऑर्गन को जाकर के वो कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से ये निकला, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लंबर रीजन है, तो यहाँ से ये गया स्टमक के में कनेक्ट हुआ, है ना, लिवर से कनेक्टेड हुआ। तो इसलिए अगर आपका स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी यहाँ इसमें आपके पास ना टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं। यहाँ पे आपने देखा ना, ये जो वर्टेब्रा है टोटल 33 है। अब इसमें से ओनली 31 लाइक टिल हियर, आप बोल सकते हो यहाँ तक साइक्रल के S3 तक ही, जो हमने देखा कि जो नर्व्स होती है ना ब्रेन से मैसेज पहुंचाती है पूरे बॉडी पार्ट को, तो वो यहाँ तक ही होता है, S3 तक ही होता है। बाकी के ये दोनों इतने काम में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ स्पाइन। स्पाइन का मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो 6 तरीके से मूवमेंट होता है हमारे स्पाइन का। फॉरवर्ड हो जाते हैं, बैकवर्ड गया, लेफ्ट राइट, और जब रोटेट होते हैं इस तरीके से हम रोटेट करते हैं लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से 6 होता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट बेंड, सॉरी राइट बेंड, लेफ्ट बेंड, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। अभी टाइप्स ऑफ बैक पेन। अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्पाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें से जो भी 4 पार्ट्स में इसके कोई भी रीजन में, इस 4 रीजन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम टाइप दे देंगे। अगर सपोज यहाँ पे आपके थोरैसिक में कुछ भी, थोरैसिक रीजन में कुछ हुआ, लाइक आपके T1 से T12 के बीच में, तो आपका मिडिल बैक अपर बैक पेन हो जाएगा। अगर आपका लोअर बैक में हुआ तो आपका जो ये लंबर और सैक्रल के है ना,
इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो आपका लोअर बैक पेन हो जाएगा। अभी कॉजेस, तो बहुत सारे कॉजेस है आपके बैक पेन के। इसमें से मैं कुछ यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो जैसे आपका कोई भी मसल स्ट्रेन हुआ, साइटिका हो गया, साइटिका की वजह से भी पेन होता है। और यहाँ पे आपका स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया, वर्टेब्रल स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। और इसमें और भी सारे हैं कि आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हो, आपका जो आर्थराइटिस हो गया, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा हैवी वेट है उसकी वजह से भी हो गया, आप कुछ भारी सामान लिफ्ट कर रहे हो। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम सामान उठाते हैं, हमने उठा तो लिया उस टाइम पे, बट उसके बाद बैक पेन हमारा शुरू हो जाता है, या फिर हम गिर गए, लाइक ऑल ऑफ सडन हम फॉल हुए और हमारे लाइक तो हमको ट्रॉमा लगा, तो उसकी वजह से भी हमारा बैक पेन होता है। अभी यहाँ पे आएगा हमारा कॉन्स्टिपेशन। ये भी एक रीजन है आपके बैक पेन का। वो कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा कि हमारा जो स्पाइन है ये यहाँ पे भी कनेक्टेड, आपके ये सारे कॉलन्स हो गया, ये लीवर वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। तो अभी जो हमारा स्टूल है ये कॉलन में इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है। तो एक इकट्ठा होने के बाद इसको भी स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, जब भी ये स्पेस लेगा तो ये पुश करेगा पीछे की तरफ, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्पाइन है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपका बैक पेन होगा। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक रीजन है आपके बैक पेन का। अभी इसमें आपको पता चलेगा, अगर आपको डल ऐसे ना, जबकि जो लोअर है, जहाँ पे ये पेट के पीछे, जो कॉलन के पीछे जो वाला रीजन है आपका लोअर बैक पेन, वहां पे ऐसा डल सा फीलिंग होगा पेन का, तो कॉन्स्टिपेशन है। अभी आता है साइटिका। अब साइटिका जो है, पहले हमारा एक ही नर्व होता है जो कि लंबर रीजन के फोर्थ वर्टेब्रा L4 से शुरू होता है, S3 सैक्रल के तीसरे, जो भी तीसरा वर्टेब्रा होता है वहां तक ये आपका साइटिका रहता है। अभी इसमें कुछ भी मतलब आपके इस रीजन में, इस साइटिका के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ा, कोई भी इंजरी हुई, तो उससे आपका जो पेन होता है ना, वो यहाँ आपके बट से लेकर के यहाँ से आपके नीचे पैर तक जाएगा, क्योंकि जो साइटिका नर्व है यहाँ तक जा रही है। तो जो ये पेन होता है ना, इसको हम लोग साइटिका बोलते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम होती है ये इसको हम साइटिका बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ना जो आपका लेग है, आपका बैक है, उसमें आपको वीकनेस और थोड़ा नंबनेस वाली फीलिंग आएगी। फिर आता है हमारा स्पाइनल स्टोनोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका वर्टेब्रा है, ठीक है। अब ये आपका बल्जिंग है, हो रहा है, और ये नर्व रूट है। तो हमने देखा कि जो हमारा बहुत सारे नर्व्स इसमें से निकलते हैं, आपका स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसमें से बहुत सारे नर्व्स निकल रहे हैं जो कि पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं, वो मैसेज को पहुंचाते हैं। तो अभी इसमें क्या होगा कि आपका ये बल्जिंग वजह, किसी की वजह से भी जो ये पासेज होता है ना, जहां से ये नर्व रूट निकलता है, वो थोड़ा श्रिंक हो गया है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके उसमें ना पेन हो रहा है, या फिर वो प्रॉपर उसमें से निकल नहीं पा रहा है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं स्पाइनल स्टोनोसिस। अब ये ना आपके किसी भी रीजन में हो सकता है, वो आपके सर्वाइकल में, या फिर मिडिल बैक जो हमने देखा लंबर रीजन, या फिर आपका बैक पेन जो लोअर बैक है वहां पे भी ये हो सकता है। अब आते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थ्राइटिस। अब आर्थराइटिस आपने देखा होगा कि ज्वाइंट्स में होता है, सब जगह होता है, बट ये हमारे स्पाइन में भी हो सकता है, एंड स्पेशली आपका जो आर्म वाला है, आर्म और लेग के साइड वाला जो इससे कनेक्टेड है आपका स्पाइन, वहां पे इसमें क्या होता है कि आपका जो ये डिस्क है ना, बीच के अंदर का जो डिस्क है वो पतला हो गया, ठीक है, डिजेनरेट होकर पतला हो गया, और जो वर्टेब्रा है ये दोनों आपस में भी टकराने लग गए हैं। यहाँ पे ये आपका हुआ डिस्क, अभी ये खत्म हो गया, तो अभी क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर लग रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थ्राइटिस। अब इसमें ये स्पेशली आपका जो ये आपको मैंने बताया कि नेक और लोअर बैक में ही सबसे ज्यादा आपको ये फील होगा। ओके, टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट द बैक पेन, हाउ लाइक ये कैसे होता है, क्या क्या हमें देखना चाहिए और क्या क्या माइंड में रखना चाहिए। अभी हम आएंगे प्रैक्टिकल पोर्शन में, कि हम कौन कौन से प्रैक्टिकल करें जिनको बैक पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जिनको बैक पेन नहीं है तो वो किस तरीके से अपने बैक को हेल्दी रखे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। तो सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है कि जो सूक्ष्म मतलब होता है सटल, सटल बॉडी। तो जो हम एक्सरसाइज या फिर कुछ भी आसन या फिर हम एक मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी का, अपने सटल बॉडी के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका जॉइंट्स है, बहुत स्टिफनेस है, तो उसको रिड्यूस करता है, और आपके मसल को रिलैक्स करता है, और आपके बॉडी को
प्रिपेयर करता है ताकि आप जो भी कॉम्प्लेक्स आसनास है, कोई भी आप सपोज शीर्ष आसना करने जा रहे हो, जो भी ऐसे हायर लेवल वाले आसनास होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। आपकी ना फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी को भी बढ़ाता है ये, और आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। जब भी आप जैसे इसको आपने शोल्डर मूवमेंट किया, आपने ये चीज को इन्वॉल्व किया शोल्डर को, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो और बढ़ता है। तो वी कैन से लाइक सूक्ष्म व्यायाम किस तरीके से, जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले हम वार्म अप करते हैं थोड़ा, तो ये आसनास के लिए वार्म अप है अपना जो सूक्ष्म व्यायाम है। अभी इसमें हम सारे देखेंगे, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, आर्म मूवमेंट, ट्रंक, एंकल, नी मूवमेंट। तो ये सारे हम जो ये 5 दिन लाइक हमारे पास जो भी 4 दिन और है इस दिन, इसमें हम ये सारे प्रैक्टिकल्स देखेंगे और हम कुछ आसनास भी परफॉर्म करेंगे अपने बैक पेन को हटाने के लिए और उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए। तो हम थोड़े जनरल बेनिफिट्स देख लेते हैं आसनास के। तो उसका होता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके स्टिलनेस बढ़ाता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे ऐसे आसनास है जिसमें बैलेंस करते हैं तो आपके जो स्टिलनेस होती है वो बढ़ाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है ना थ्रू आउट द बॉडी उसको वो बढ़ाता है। अब ये कुछ आसनास हैं जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं, हस्तोत्थानासन, त्रिकोणासन, ओके, जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने बैक पेन को कम करने के लिए। अर्धोष्ट्रासन, भूनमनासन, दीज आर द ट्विस्टिंग एंड लाइक इसमें स्पाइन का मूवमेंट देखना, जैसे अब हम लाई डाउन है तो हमारा स्पाइन कैसे स्ट्रेच हुआ, राइट। अभी इसमें हम लोगों ने किया तो ये साइड में हमारा स्पाइन स्ट्रेच हो रहा है, साइड में जा रहा है, ये ट्विस्ट कर रहे हैं हम इसमें, तो स्पाइन में क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये सारे मूवमेंट्स हम करेंगे अपने बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए। भुजंगासन, हाँ, और सूर्य नमस्कार भी हम परफॉर्म करेंगे। ये हम मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार परफॉर्म करेंगे जिनको बैक पेन हो रहा है। हम सूर्य नमस्कार भी करेंगे उनके लिए जिनका बैक पेन नहीं हो रहा है, उनको हेल्दी रखने के लिए, बट दिस स्पेसिफाइज लाइक दिस सूर्य नमस्कार इज स्पेसिफाइड फॉर बैक पेन, दोज हु हैव बैक पेन। अब सूर्य नमस्कार के थोड़े बेनिफिट्स भी देखेंगे हम। तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और अपना जो स्पाइन का अलाइनमेंट है ना, हम अभी ये देखेंगे बैक पेन में कैसे ये हमारा इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि ये क्या स्पाइन के अलाइनमेंट को सही करता है, बेटर करता है, और हमारे वेट को रिड्यूस करता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वेट ज्यादा है तो भी हमें बैक पेन होगा, तो वेट को भी रिड्यूस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इनहेंस करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल लाइक साइकिल में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी रेगुलेट करता है। पता षटक्रिया, षटक्रिया क्या होता है, आपकी ना पूरी बॉडी को, होल बॉडी को क्लीन करता है। तो इसके लिए ना 6 क्रियास दिए हुए हैं। तो उसमें से जिनको बैक पेन है वो सिर्फ बस्ती और त्राटक का मॉडिफाई लाइक सपोर्ट के साथ में कर सकते हैं। हम नेति, धोती, नौली, कपालभाति प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी आप ये परफॉर्म करोगे तो आपके बैक के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर आएगा, तो जिसकी वजह से हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। बट हम ये 2 बस्ती एंड त्राटक परफॉर्म कर सकते हैं। षटक्रिया के बेनिफिट्स क्या है कि आपका जो दोषास है उसको बैलेंस करता है, वात, पित्त एंड कफा। अगर ये तीनों बैलेंस है तो आपका जो एक्सेस कफ है, म्यूकस है, वो निकल जाएगा, आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी, और आपका जो भी डिसीज है बॉडी में तो वो इन तीनों दोषास के इनबैलेंस से ही होता है। तो अगर ये तीनों ही बैलेंस है तो आपकी बॉडी में से बहुत सारे बीमारियां भी सारी निकल जाएंगी। तो बस्ती, हम लोग बस्ती परफॉर्म करेंगे स्पेशली फॉर कॉन्स्टिपेशन। हमने आगे देखा कि कॉन्स्टिपेशन भी बैक पेन का एक रीजन है। तो अब उसको कैसे हटा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम कर सकते हैं बस्ती के साथ में। तो बस्ती के बेनिफिट्स देख लेते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है आपको, और आपका जो एनर्जी लेवल है ना उसको बहुत लाइक इनहेंस करता है। आपकी एनर्जी लेवल जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ती है, क्योंकि आप जब भी आपका मोशन प्रॉपर नहीं होता है मॉर्निंग में तो आपको कैसे डलनेस सी और लेथार्जी जैसे फीलिंग आती है। तो लेकिन अगर ये हमेशा क्लीन होता रहता है, क्लीन होगा तो आपका क्या ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है ना वो बूस्ट होगी, वो बढ़ेगी। प्राणायाम, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्राणायाम। जो प्राणायाम है ये दो रूट वर्ड से बना है, प्राणा एंड आयामा। तो प्राणा मीन्स क्या होता है, आपका लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी। आयामा मीन्स क्या होता है, टू कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल करना। तो जो भी आपके जो प्राण है
आप ऐसे इन जनरल बोल सकते हो कि जो भी आपकी ब्रीदिंग है, जो भी आप सांस ले रहे हो ना, वो आपको कंट्रोल करना है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल हो गया तो आपका माइंड सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। अभी यहाँ पे बैक पेन और प्राणायाम का क्या कनेक्शन है? तो मोस्ट अभी इन जनरल नाउ क्या होता है कि हमारे ना आधे आधे प्रॉब्लम्स, आधे आधे पेन जो होते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो ना साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। उसमें अभी प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम क्या करता है, आपके माइंड को काम करता है, आपको ना काम करता है, बॉडी को काम करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बैक है, लाइक आपके जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो गए, आपके माइंड में ये सारी चीजें निकल ही गई कि हाँ आपको ये पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इसलिए प्राणायाम जो है बहुत ही बेनिफिशियल है जब भी आपको बैक पेन हो रहा है। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बेनिफिट्स है प्राणायाम के। तो सबसे पहले आपका जो मेंटल कामनेस और पीस होता है, उससे प्राणायाम वो आपको देता है। आपकी जो नाड़ीज होती है उसको क्लीन करती है, आपके स्ट्रेस को कम कर देता है। और जो कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी और माइंड का, वो इंक्रीज करता है। और आपका जो भी बॉडी है, लाइक अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें इन प्रॉपर वे में, तो आपके जितने भी डिसीज है ना, सारे के सारे खत्म हो सकते हैं। बट हमेशा याद रखना है कि जो प्राणायाम है, अगर उसको आपने गलत तरीके से किया या फिर आपने कुछ भी ऐसे गलत किया, तो आपको बीमारियां भी आ सकती है। तो इसलिए हमेशा जो प्राणायाम है ये थोड़ा हायर लेवल का होता है, तो इसको ना हमेशा किसी एक गुरु के अंडर में ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप एक बार इसके यूज टू हो गए, हाँ आप किसी और के साथ में आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट इनिशियल जब आपको स्टार्ट करना है तो हमेशा एक गुरु के ही अंडर में आप इसको सीखें। अब आते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम थोड़ा एक मैं स्टॉप करती हूँ थोड़ा देर के लिए, हम देखेंगे। 1 सेकेंड। वन सेकेंड गाइस, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे सभी अपने स्टमक पे आपका राइट हैंड रखेंगे। Okay, I'm requesting to everyone if you can keep your cameras on, so it will be easy for me to observe you guys how you are doing what you are doing. So if it is possible, please keep your cameras on. Okay, सब लोग अपने स्टमक पे हाथ रखेंगे। पहले आप स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आपके स्टमक पे हाथ रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 2 से 3 राउंड के बाद आप अपनी आंखें खोल करके रिलैक्स कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप में से जब आप श्वास को अंदर भर रहे हैं या फिर ब्रीद इन कर रहे हैं, तो आपका स्टमक का मूवमेंट क्या है, ये अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है? आप मुझे चैट में भी लिख सकते हो या फिर आप मुझे ऐसे अनम्यूट करके बताइए। बस मुझे जानना है कि आपका मूवमेंट क्या हो रहा है स्टमक का। यस सुगंधिनी जी। Yeah, when I breathe in, यस when I breathe in, the इज योर stomach goes out. Maybe because we're practicing, I know about this. And if you breathe out, the stomach goes inside. यस दैट्स ग्रेट। एंड लाइक I received a message from Priyananda ji, yes. So the correct way is like when you are breathing in, it should go out, and when you are breathing out, it should be go in. So that is why here sectional breathing to like correct your breathing pattern. If it is wrong, if it is correct, then that's great. And also the benefit of sectional breathing is to it enhance your lungs capacity. It increase the oxygen level. You are breathing more oxygen, and also it also reduce the physical and mental stress. Okay, so we are going to practice in 4 days few pranayam also. So these are anulom vilom. So what are the benefits of anulom vilom is like ये आपकी जो इम्यूनिटी आपका मेटाबॉलिज्म होता है उसको
होस्ट करता है, आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, और आपका जो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ना, इसको स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज लाइक इन अनुलोम विलोम यू आर इनहेलिंग एक्सहेलिंग डीपली। तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसको स्ट्रेंथन करता है, आपके दो श्वास को बैलेंस करता है। भ्रामरी प्राणायाम का बेनिफिट्स क्या है? आप जब भ्रामरी प्रैक्टिस करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो वॉइस निकलता है ना, ये आपके थ्रोट से आता है। तो इसमें जो आपका वोकल कॉर्ड होता है ना, इसको स्ट्रेंथन करता है, आपके वॉइस को स्वीट बनाता है, और आपका जो एंगर होता है तो एंगर को भी रिड्यूस करता है। सबसे ज्यादा मेन यही है। और नाउअडेज आपको जो एंगर है बहुत ज्यादा होता है, और हमें पता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो कितने सारे चेंजेस होते हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे जो सोचने के जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हम भ्रामरी करते हैं तो ये सारी चीजें रिड्यूस होंगी, और जो हमारा माइंड है वो और काम हो जाएगा। अभी शीतकारी जो प्राणायाम होता है, इसका जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करता है, आपका जो माइंड है उसको काम करता है, और आपका जो डेंटल प्रॉब्लम है स्पेशली दंत सेंसिटिविटी उसमें भी बेनिफिशियल होता है। आपको डिप्रेशन है तो उससे भी ये रिलीज करेगा। उज्जयी प्राणायाम, तो ये आपका इंसोम्निया में बहुत बेनिफिशियल है, माइग्रेन है उसके लिए बहुत अच्छा है। अभी इंसोम्निया भी उज्जयी से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? इंसोम्निया अगर हम प्रॉपर से नहीं सोते, हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है, तभी हमें क्या होता है, हमारे ना जो स्पाइन होता है हमें पूरी बॉडी रेस्ट नहीं मिलती है, तो इससे भी हमारा पेन होता है। तो अगर आप उज्जयी प्राणायाम कर रहे हो, आप प्राणायाम ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। हस्त मुद्रा, अभी हस्त मुद्रा अगर आप प्राणायाम के साथ में प्राणायाम और मुद्रा को साथ में परफॉर्म करते हो तो जो भी बेनिफिट्स है आपको वो बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन सपोज आप प्राणायाम कर रहे हो और आपको 20% बेनिफिट मिलता है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। बट अगर आप मुद्रा के साथ में करते हो तो जो बेनिफिट होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप 20% से आपको 30% उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ हस्त मुद्रा भी हम प्रैक्टिस करेंगे ये 4 दिनों में, तो उनके कुछ बेनिफिट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी बढ़ाता है, आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जो आपका ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको भी वो कम करता है। ये कुछ हस्त मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आदि मुद्रा, ध्यान, ब्रह्म मुद्रा। हम अब आते हैं मेडिटेशन और रिलैक्सेशन, जस्ट टू कीप आवर सेल्फ आवर माइंड टू रिलैक्स्ड। अभी इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है? आपका जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, और आपका जो मेडिटेशन है ना, आपका जो रिलेशन है माइंड और बॉडी का, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, इसको बढ़ाता है। और आपका जो माइंड है वो आपको थोड़ा इनवर्ट लेकर जाता है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, फोकस इंक्रीज होता है, आपका जो परसेप्शन है ना वो चेंज होता है, स्पेशली इन पेन। तो आपको क्या, अब आपका माइंड क्लियर, थॉट क्लियर है, तब रूट को जानोगे। जैसे आपको क्या जो पेन है ना, उसका जो भी परसेप्शन है पेन से रिलेटेड वो भी आपको आप चेंज हो जाएगा आपका। तो अभी हम कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं मेडिटेशन के टेक्निक्स जो कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बॉडी अवेयरनेस है, ब्रीद अवेयरनेस, योग निद्रा, ओम मेडिटेशन, सोहम। तो ये पे पूरे हम लोग इनमें से जितना पॉसिबल होगा हम कवर करने का ट्राई करेंगे। अब मैं थैंक यू सो मच। और मैं अभी आपको कुछ टिप्स दूंगी ताकि आपके जो स्पाइन है उसको हेल्दी रखने के लिए। So because like if there is any problem with your spine, so it will cause back pain. So keep your spine healthy. तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स मैं बताऊंगी। सबसे पहला है आपको एक्सरसाइज करना है डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक आप एक्सरसाइज करो, स्पेशली उसमें इन्वॉल्व करो आपका जो कोर मसल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज लिफ्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप बैठ जाइए, या फिर आप अपने नी को बेंड करिए और आपके स्पाइन को इरेक्ट करते हुए ही उसको लिफ्ट करिए। और आप हमेशा, आपको पूरे दिन में ही आपको ना पोस्चर को हमेशा ध्यान रखना है, उसको ना स्ट्रेट रखना है, क्योंकि जितना पोस्चर आपका अच्छा रहेगा उतना ही आपके स्पाइन में प्रॉब्लम्स कम होगी। तो ये कुछ टिप्स थे, जस्ट लाइक कीप इन योर माइंड। तो थैंक यू so much. And if you guys have any doubt, any questions, just let me know. And can you show the Surya Namaskar slide one more
time for back pain. Sure. Give me a moment. Yeah. We are going to practice this. So like जब हम practice करेंगे इसका practical करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि हमें नहीं posture नहीं कैसे दिख रखना रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं 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 दिख रहा है? It is It's not showing. seen, Pooja. I Wait. think you should share your screen. Wait. Let me share it. Yeah, I think it should. It is visible now. Yes. Pooja ji, it's visible now. Please send out Okay. this one, Pooja ji. The feedback form. Okay. I'll do. Requesting everyone to fill the feedback form. It will be given Yeah, on if you everyday could, because basis. I would exit मेरा class है. Okay. Yeah. No issues. Wait a minute. I'll share. We'll share it. Give me a moment. Okay, till now anyone have any question? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है? Pooja ji, very nice session. Thoroughly you explained so everything. much. Very nice. Thank you so much. I'll share the Feedback form. feedback form. I'm so sorry. I should have taken it at the beginning. Yeah, that's fine. But right now I am unable to here. Okay. स्मिता जी आपके पास है क्या? I'm not able to copy paste it. That's the reason. Yeah, I think I have shared in the link in the chat box. Okay. Thank you so much, Kananda ji and Sunil sir. Okay, for the 4 days we are here, we are going to practice the practical. We are going to do practical. Today it was just for the theory session, so that we just need to aware of the things. All right, Guruji. And please, everyone, please fill up the feedback form. It will help us to improve our future sessions. Thank you so much, Guruji ji. बहुत अच्छा रहा पूजा जी। Thank you so बहुत much, अच्छे Smita ji. बहुत अच्छे से nicely explained everything. Thank you so much, Smita ji. आप सब लोगों का सपोर्ट है क्योंकि आप लोगों ने भी अपने बहुत अच्छा ध्यान दिया और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कितना सुनने के लिए। अगर आप लोग इसे प्रॉपर ऐसे ध्यान से बैठ के सुनते नहीं तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करनी चीजें। थैंक यू सो मच साइली जी। यस श्वेता जी। बट मैदान पर आप ही हो ना, बहुत अच्छे से किया आपने। नाइस पूजा जी, गुड जॉब, सुपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so if no one has any doubt, so today we'll end the session here. So we'll end with the Omkar. Okay, so sit straight, back straight, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को नमस्ते में 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल आउट। Now take a deep breath and Omkar chanting.
Inhale. Inhale. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands, and you can open your eyes. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes, see you tomorrow at the same time. Okay. See you. Have a nice day. Take care. Thank you. Thank you.